Good morning, girls. Uh, how are you all? I hope you all are fine. Now we start chapter number 1 from your book. It is a Punjab School Education Board book. This book is already uploaded on your website. You can also download from this, and I am also provide you in the notes format. नोट्स की फॉर्मेट में मैं आपके साथ रोज़ का रोज़ जितना हम करेंगे वो मैं शेयर करूँगी. Starting from the introduction, web designing is the process of creating websites. Web designing क्या है? Web designing is the process of creating websites. It includes several different aspects such as web pages, layout, content production and graphic design, etc. Websites are created using a markup language called HTML. You can learn from the previous classes. Markup language is the HTML language. HTML means hypertext markup language. Web designing build web pages using HTML tags that defines the content of the and metadata of each page. The layout and appearance of the elements within a web pages are typically defined using CSS. CSS means cascading style sheets. Therefore, most websites include a combination of HTML and CSS that defines how each page will appear in a browser. इस चैप्टर में बेटा वेब डिज़ाइनिंग हमने पढ़नी है, लेकिन किसके साथ पढ़नी है? HTML और CSS में, क्योंकि यही दो एक मेन कंटेंट्स हैं जो हमें वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने में, वेब पेजेस को डिज़ाइन करने में हमारी हेल्प करते हैं. Since web designers prefer to hand code pages like HTML and CSS from scratch, while others are using WYSIWYG. It is a full form of what you see is what you get. It is a feature of Microsoft Word कि जो हम स्क्रीन पे करते हैं वो हमें दिखता है. अगर किसी चीज़ को आप वर्ड में चेंज करते हो तो आप देखते हो ना, जो भी आप ऑप्शन ऊपर से क्लिक करते जाओगे वो टेक्स्ट उसी तरह से होता जाएगा. Editors like Adobe Dreamweaver. This type of editor provides a visual interface for designing the web page layout, and the software automatically generates the corresponding HTML and CSS codes. We have studied about basis of HTML and CSS in the previous class. In this chapter we are going to discuss about the basic of web designing, some advanced topics of HTML and CSS along with the open source editor Notepad++. आपको पता है आप जितना भी काम करते हो HTML में वो सारा हम नोटपैड में करते हैं, लेकिन हमने अब एडवांस वर्जन यूज़ करना है नोटपैड का, Notepad++. इट इज़ अ ओपन सोर्स एडिटर. ओपन सोर्स एडिटर का मतलब क्या होता है? जो मैंने प्रीवियस वीडियो आपको भेजी है उसमें भी मैंने बताया है कि ओपन सोर्स का मतलब होता है जो कोई मर्जी उसको असेस कर सकता है. एंड व्हाट इज़ अ गुड वेब डिज़ाइनिंग? एक अच्छी वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है? हमें सिंप्लिसिटी से काम करना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. कंसिस्टेंसी का मतलब है द डिज़ाइन ऑफ एवरी वेब पेज एंड द वेबसाइट शुड बी कंसिस्टेंट. मीन्स जो कलर कंट्रास्ट, जो कलर कॉम्बिनेशंस लेने हैं वो आपने बिल्कुल प्रोफेशनल लुक में लेने हैं. देन सिंप्लिसिटी, द क्लीन एंड फ्रेश डिज़ाइन फॉर अ वेबसाइट शुड बी प्रेफर्ड. कोई ऐसा डिज़ाइन लेना है कि जो सिंपल हो और देखने में एक सोबर लुक दे. सोबर लुक मतलब समझते हो ना? टाइपोग्राफ एंड यूजेस टेक्स्ट. The text on the website should be clean and readable so that the search engine will be able to index the web pages. In web pages, the headings etc. should be alike. Languages should also be used in such a way that online web page translate can be easily translate the web page into another language. जो आपका टेक्स्ट है वो टाइपोग्राफी में होना चाहिए. टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि जो आप वेबसाइट बना रहे हो उसका जो टेक्स्ट ले रहे हो वो इजीली दूसरी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हो जाना चाहिए अगर कोई करे उसको. मल्टी डिविजनल डिज़ाइन. मल्टी डिविजनल डिज़ाइन का मतलब है कि जो आपका डिज़ाइन होना चाहिए वेबसाइट का, जो उसकी डिस्प्ले होनी चाहिए
वो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, मॉनिटर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि अगर आप आपकी वेबसाइट कोई मोबाइल पे ओपन कर रहा है तो वो उसकी प्लेस ले लें कि आपका जो पेज है वो कट ना हो साइड से। पिक्चर, वीडियोज़ एंड ऑडियोज़ लगानी चाहिए लेकिन अप्रोप्रिएट प्लेस में। अगर आप नंबर ऑफ़ इमेजेस और पिक्चर्स लगा दोगे उससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट हैवी हो जाएगी। जब आप उसको लोड करोगे ना, लोड का मतलब समझ, जब आप उसको ओपन करोगे नीचे लोडेड आता है, जैसे उसको लोड करोगे तो वो टाइम लेगी। जो वेबसाइट टाइम कंज्यूमिंग होती है तो हम लोग उससे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये ओपन ही नहीं हो रही है। तो कम्युनिकेशन एंड एड्रेस, आपका URL का जो वेबसाइट का एड्रेस है वो एक करेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। सोशल शेयरिंग फीचर होना चाहिए कि अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हो साथ में ही वो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट पे भी शेयर हो जाए, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। F design, it has been learned from the deep research that ordinary users scan web pages, computer screens in an F pattern. As the first glance is really a scene on the right side on the screen, this kind of design means looking at the web page from left to right and top to bottom, which is the most user prefer. It is same as English alphabet. And कौन से फेसेस हमें बनाने के टाइम पे याद रखने चाहिए। सबसे पहले आपको 6 मेजर स्टेप्स हैं जब आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हो और डेवलपमेंट के प्रोसेस तक लाते हो। वो कौन कौन से हैं? इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, प्लानिंग करनी उसकी, डिज़ाइन करना, डेवलप करना, टेस्टिंग एंड डिलीवरी एंड मेंटेनेंस। ये 6 बेसिक स्टेप्स हैं। इन्फॉर्मेशन गैदर करने का मतलब है कि आपने जिस वेबसाइट को डेवलप करना है, जिसको बनाना है, उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और प्लानिंग करनी चाहिए, प्लानिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिलीवरी एंड मेंटेनेंस। I will give you the description on next lecture. Okay, I will give you the description of this on next lecture. Thank you. Have a nice day.